آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے بائبل مقدس کو کھولتے ہیں اور خدا کے پاک کلام میں سے آج سیکھتے ہیں۔ نکالیے میرے ساتھ زبور 23، بڑا ہی خوبصورت زبور، اور بڑی صدیوں سے اس زبور کو ہم سنتے آ رہے ہیں، اور مسیحی ایماندار جو لوگ ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اکٹھے آج اس زبور کو پڑھیں گے، یک زبان ہو کر، آگے پیچھے نہیں، ایک ہی زبان میں ایک ہی دفعہ ہم پڑھیں گے، اور ہم پڑھیں گے 23 زبور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، انہوں نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ بڑا ہی خوبصورت یہ زبور ہے، اور اس زبور کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس زبور میں ہم جو انسان ہیں اس کو بیڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس دور میں، اس زمانہ میں مڈل ایسٹ کا جو دور تھا، جس خطہ میں بائبل مقدس آئی اور یسوع مسیح، اور اس سے پہلے ہم چلے جائے پرانے عہد نامہ پر غور کریں، اس خطے میں بیڑوں اور بکریوں اور اس طرح کا جانوروں کا لوگ زیادہ بزنس کرتے تھے، اور یہی ان کا کاروبار ہوا کرتا تھا، اور جو چرواہے تھے وہ ان کی بڑی خاص اہمیت ہوتی تھی، کیونکہ وہ زیادہ بزنس، زیادہ کاروبار اس وقت یہی کیا کرتے تھے اس دور میں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو چرواہے کی ڈیفینیشن داؤد جو ہے خدا کے نبی نے، کیونکہ داؤد جو ہے وہ خود بھی چرواہا تھا، اور اس نے جس طریقے سے انسان کو بیان کیا ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے چرواہے کو، کیونکہ وہ خود چرواہا تھا، himself shepherd، وہ خود جب چرواہا تھا تو اس نے کس طرح خدا کو چرواہا بیان کیا ہے اس بڑے خوبصورت زبور میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس اپنے بندے کے وسیلہ سے اس کلام مقدس میں، اس زبور میں بہت ساری جگہوں میں اور جگہوں پر بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو بیڑوں کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ۔ انسان کو شیر نہیں کہا، انسان کو کچھ چیتا نہیں کہا، گھوڑا نہیں کہا، لیکن بھیڑ سے تشبیہ دی گئی کلام مقدس میں۔ اس زبور 23 زبور کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو بھیڑ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ وائی شیپ، کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ انسان کی جو طبیعت ہے، انسان کی جو جبلت ہے روحانی طور پر، اسپرچولی، وہ بھیڑ کے ساتھ کافی ملتی جلتی ہے، اس لیے بھیڑ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ مثال کے طور پر اگر ہم بھیڑ کو دیکھیں تو وہ ڈیفنس لیس ہے، اس پر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار جلدی نہیں ہوتی، اس کو کوئی بھی اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی۔ انسان بھی اسی طرح ہے، انسان اکیلا خود ڈیفنس لیس ہے جب تک اس کا چرواہا اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے چرواہے کے ساتھ رہے، پھر اس کا ڈیفنس
मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि उसका चरवाहा जो है उसकी हिफाजत करता है, उसके साथ साथ करता है। और इंसान ऐसा कभी कभी हम करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम खुदा के बगैर चल सकते हैं, हम खुदा के बगैर जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन अजीजों, हम अपने रूहानी चरवाहे के बगैर जिंदगी बसर नहीं कर सकते। हमारा डिफेंस जो है, हमारा जो दिफा है, वो हमारे चरवाहे के साथ है। इसके साथ अगर हम देखें तो भेड़ जो है वो फुलिश है, अहमक है, आसानी से भटक जाती है, बड़ी आसानी से। जब चरवाहा लेकर उसको चलता है तो वो आसानी से अपनी राह से फिर जाती है, वो बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए भी हम इंसानों को जरूर है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम अपनी राहों से ना फिरें। यशायाह 53 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम सब में से हर एक अपनी राह को फिरा। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने चरवाहे के साथ कनेक्टेड रहें, अपने चरवाहे के साथ मुंसलिक रहें, अपने चरवाहे के साथ साथ रहें। ये एक अक्लमंद जानवर नहीं है और इसलिए ये भटक जाता है और अपनी राह से फिर जाता है। और कभी कभी ये चरवाहे से अलग जब हो जाता है, फिर जाता है, तो अक्सर जो भेड़ की जो नेचर है, जब भेड़ अपने चरवाहे से भटक जाती है, अलग हो जाती है, तो अपनी घर, अपने जो मंजिल है या डेस्टिनेशन है, वहां पर पहुंच नहीं सकती। ये उसकी नेचर है, वो भूल जाती है। भेड़ की जो नेचर है ये है, ये इंसान में है। डायरेक्शनलेस, भेड़ डायरेक्शनलेस है। अगर हम उसका कंपेयर दूसरे जानवरों से करें, कबूतर है, कबूतर को हम सब जानते हैं, बड़ा कॉमन बर्ड है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। हम उसको छोड़ते हैं, अक्सर सुना होगा आपने, तो कई दिनों बाद वापस अपने घर में आ जाता है। डॉग्स हैं, अक्सर अगर वो जाएं तो वो वापस, उनको पता है हमने कहां पर जाना है। कैट्स हैं, बिल्ली है, वो कभी कभी अगर घर से निकल जाए तो उसे पता है मैंने वापस किस जगह पर जाना है, मेरा ठिकाना क्या है। लेकिन इसके बरअक्स जो भेड़ है, ये जब अपने चरवाहे से जुदा हो जाती है, जब ये भटक जाती है, अपनी राह जुदा कर लेती है, तो फिर इसको समझ नहीं आता, फिर ये अपने चरवाहे को ढूंढती है। और चरवाहा हमारा यीशु मसीह आ खड़ा होता है, और वो फिर वो लिखा है कि वो बाकियों को छोड़कर और एक भेड़ जो है उसके पीछे चला जाता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंसी है इसकी चरवाहे पर। इसी तरह हम जो इंसान है, हमारा इन्हिसार हमारे चरवाहे जो हमारा यीशु मसीह है उस पर है। हमारा इन्हिसार इस पर, हम अकेले जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमारा हिफाजत करने वाला है, हमारी तमाम जरूरियात को मुहैया करने वाला है। हमारी जितनी भी जरूरियात है, खौफ हो, डर हो, उसको वो दूर करता है और हमें हर तरह की मुश्किलात से निकालता है। ये काम चरवाहे का है। इसलिए चरवाहे की बड़ी अहमियत है बाइबल मुकद्दस में। इंसान रूहानी तौर पर, इखलाकी तौर पर भेड़ की मानिंदार। अजीजों, दाऊद नबी ने, खुदा के बंदे ने, उसने तस्लीम कर लिया, उसने कहा मैं भेड़ हूं, उसने कहा खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। उसने तस्लीम कर लिया। और जब हम शख्सी तौर पर तस्लीम करते हैं, जब हम शख्सी तौर पर, दिली तौर पर मान लेते हैं, अपने आप को भेड़ की मानिंद समझते हैं और मान लेते हैं कि वो ही मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, तो फिर हम कहते हैं उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में कि मुझे कमी ना होगी। जब हम ये मान लेते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है, तो फिर उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में हमें किसी किस्म की कमी नहीं होती। हालेलुया। और चरवाहा जो है, चरवाहे का फिर काम है मुहैया करना। वो अपनी भेड़ों को मुहैया करता है। उसकी भेड़ को भूख हो,
وہ اس کو مہیا کرتا ہے. اس کی بھیڑ بیمار ہو وہ اس کو مہیا کرتا ہے. اس کی بھیڑ مشکلات میں ہو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کی بھیڑ دشمنوں میں گری ہوئی ہو وہ اس کو نکال کھڑا کرتا ہے, وہ مہیا کرتا ہے. کیونکہ وہ چرواہا جب ہم اس کو مان لیتے ہیں, جب ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ وہ میرا چوپان ہے, تو کسی قسم کی بھی کمی ہمیں نہیں ہوتی. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ ہمیں شادمانی عطا کرتا ہے, وہ ہمیں خوشی عطا کرتا ہے. نہ صرف روحانی اور جسمانی بلکہ ہمیں آنے والی جو اس دنیا کے بعد جو خوشی ہے وہ بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کیسے اپنے باپ کے ساتھ مل کر رہیں گے اور شادمان رہیں گے اور ابدیت میں رہیں گے. وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے چلتا ہے اور وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. اور بحالی تبھی ہوتی ہے, ریسٹور کرتا ہے, وہ تبھی ہوتا ہے جب ہم بھٹک جائیں, جب ہمیں خرابی ہو تو پھر وہ بحال بھی کرتا ہے. وہ ہمیں ہر طرح سے بحال کرتا ہے. جسمانی طور پر ہم بیمار ہوں وہ ہمیں بحال کرتا ہے. جسمانی طور پر ہم مشکلات میں ہوں وہ ہمیں بحال کرتا ہے. معاشی طور پر ہم مشکلات میں ہوں وہ ہمیں بحال کرتا ہے. روحانی طور پر ہم بھٹک جائیں, ہماری محبت ٹھنڈی پڑ جائے, وہ ہمیں بحال کرتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کی راہ سے بھٹک جائیں وہ ہمیں بحال کرتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے روحانی طور پر ہم ٹھنڈے پڑ جائیں وہ ہمیں بحال کرتا ہے. ہر دو طرح سے وہ ہمیں بحال کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا چرواہا ہے, وہ ہمارا چوپان ہے. کیونکہ لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. کمی نہ ہوگی, ہر طرح سے کمی نہیں ہوگی, کسی قسم کی کمی نہ ہوگی. یہ صرف جسمانی کمی کے بارے میں نہیں لکھا گیا, یہ صرف معاشی کمی کے بارے میں نہیں لکھا گیا, یہ معاشرتی کمی کے بارے میں نہیں لکھا گیا, روحانی کمی کے بارے میں بھی لکھا, ہر قسم کی کمی کے بارے میں لکھا گیا. جب خداوند کو ہم اپنا چوپان مان لیتے ہیں تو وہ ہمیں کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں رکھتا. وہ اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. ایک ہی نام اس دنیا میں بخشا گیا ہے, وہ ہے عزیزو یسوع مسیح. اور جب ہم اس نام کو اپنا لیتے ہیں, جب ہم اس نام کا اقرار کرتے ہیں, جب ہم اس نام کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں, اور وہ دنیا میں ایک ہی نام ہے, تو پھر وہ ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے, سچائی کی راہوں پر لے چلتا ہے, ہمیں سچے راہ پر لے چلتا ہے, ہمیں سچائی دکھاتا ہے. کیونکہ لکھا ہے تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور پھر ہمیں وہ صداقت سچائی کی راہوں پر لے کر چلتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. پروٹیکشن اور ڈسپلن سکھاتا ہے. عصا اور لاٹھی سے وہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے. اگر ہم روحانی طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے بھٹک جائیں, روحانی طور پر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ چرواہا ہماری تربیت کرتا ہے, ہمیں ڈسپلن نظم و ضبط بھی سکھاتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں ہم جب پڑھتے ہیں خدا کا پاک کلام, خدا خود ڈسپلن کا خدا ہے, خدا نظم و ضبط کا خدا ہے. اس لیے یسوع مسیح ہماری نظم و ضبط کے ذریعے تربیت بھی کرتا ہے, اور ہماری پھر عصا ہے اس کے پاس, وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اور اس عصا سے ہمیں تسلی ہے, ہمیں تسلی ہے کہ اس کا عصا ہمارے اوپر ہے, وہ اس سے ہماری حفاظت کرے گا, وہ ہماری نگہبانی کرے گا. اگر راہ میں چلتے ہوئے ہمیں شیطان ہمارے اوپر حملہ آور بھی ہو, اگر اس کی راہ میں چلتے ہوئے ہمارے اوپر شیطانی حملہ بھی کرے, شیطان حملہ آور بھی ہو, لیکن ہمیں تسلی ہے, ایماندار کو تسلی ہے, کیونکہ اس کے عصا اور اس کی لاٹھی وہ میرے ساتھ ساتھ ہے. کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. دشمن کی موجودگی میں پھر لکھا ہے وہ میرے دشمنوں کے روبرو آگے دسترخوان بچھاتا ہے. دشمن کی موجودگی میں بھی برکت دیتا ہے, بلیسنگز دیتا ہے, پریزنس آف اینیمی, ڈینجر, خطرات.
जो ईमानदार की जिंदगी है वो खतरात से खाली नहीं है। इस दुनिया में खुदा के राह पर चलते हुए जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, तो हमारी जो जिंदगी है वो खतरात से खाली नहीं है। गोइंग अंडर द विल, अगर हम खुदा की मर्जी में रहते हैं, खुदा के साथ भी रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम रूहानी जंग में हैं जब तक हम इस दुनिया पर मौजूद हैं। पौलुस रसूल रूहानी जंग की बातें करता है, रूहानी हथियार की बातें बताता है, रूहानी बख्तरबंद की बात बताता है, क्योंकि इस दुनिया में जब तक हम अजीजों हैं, हम एक रूहानी जंग में हैं। हम एक जंग में हैं जब तक हम अपने बाप के पास पहुंच नहीं जाते, जब तक हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आकर हमें साथ अपने बाप के पास ले नहीं जाता। हम रूहानी जंग में हैं, और वो जंग में भी कहता है कि दुश्मनों के रूबरू कि वो फिर भी मुझे बरकत देगा। दुश्मन हमलावर होगा, वो मुझे बरकत देगा। दुश्मन मेरे लिए रुकावटें पैदा करेगा, वो मुझे फिर भी बरकत देगा। मेरी राह में रुकावट आएगी, वो मुझे फिर भी बरकत देगा। वो मेरे आगे आगे मुश्किलात पैदा करेगा, लेकिन मेरा चौपान मुझे बरकत देगा, क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अच्छा चरवाहा फिक्र करता है, और यीशु अल मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। और अच्छा चरवाहा मुहैया करता है, ना सिर्फ फिक्र करता है, बल्कि हमें हर तरह की जो हमारी जरूरत है उसके मुताबिक हमें मुहैया करता है। और जो उसको अपना चरवाहा बना लेता है, वो उसके साथ साथ रहता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी निगहबानी करता है। और फिर लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। वो हमें रूहानी तौर पर मसा करता है, रूहानी तौर पर कुव्वत देता है। हमारा जो रूहानी प्याला है वो लबरेज होता है, रूहानी तौर पर हमें कुव्वत अता करता है, रूहानी तौर पर हमें पाक रूह के वसीला से मसा करता है। और फिर हमारा प्याला लबरेज होता है, हर दो तरह से वो हमारी हिफाजत करता है और हमें कमी आने नहीं देता, क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। इस जमीन पर भी रहते हुए जब हम उसके घर में आते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हमें सुकूनत मिलती है, हमें रूहानी इत्मीनान मिलता है, हमें रूहानी तसल्ली मिलती है, हमें दिली तसल्ली मिलती है, हम रूहानी तौर पर कुव्वत पाते हैं जब हम उसके घर में आते हैं। और फिर जब हम उसके साथ, जब आखिर में रूहानी तौर पर भी उसके साथ इस बदन से जब ट्रांसफर होकर रूहानी और जलाली बदनों में उसके साथ जाएंगे, तो फिर हम वहां पर भी अब्दियत में दाखिल होंगे, तो वहां पर भी हम सुकूनत करेंगे अपने बाप के साथ मिलकर। हालेलुया। जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को जानता है। हमारा यीशु मसीह जो है वो हमें जानता है, वो हमारे मसाइल को जानता है, वो हमारी मुश्किलात से वाकिफ है, वो हमारी जो कमजोरियों हैं उनसे वो वाकिफ है। सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत है कि हम उसका इकरार करें कि वो मेरा चौपान है। और जब हम उसको अपना चरवाहा बना लेते हैं, जब रूहानी तौर पर, शख्सी तौर पर, दिली तौर पर हम उसको मान लेते हैं कि वो मेरा चरवाहा है, तो फिर वो हमारी हर तरह की जरूरत को पूरा करता है। फिर वो किसी किस्म की भी कमी को पूरा करने में कादिर मुतलक है, क्योंकि हमारा चरवाहा तो जलाली है, हमारा चरवाहा तो मुहैया करने वाला है, वो तो बरकतों से हमें नवाजने वाला है, हर तरह की बरकत से। इसलिए जरूरी है कि हम अपने चरवाहे के साथ रहें और इस बात का इकरार करें शख्सी तौर पर कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। ये तो हमने सीख लिया आज इस जगह पर 23 ज़बूर में कि भेड़ क्या है। हम इंसान हैं और इंसान की जो जबिलत है रूहानी तौर पर वो भेड़ों की मानिंद है और उसे एक चरवाहे की जरूरत है। यहां तक तो हमने सीखा कि ये भेड़ें और हम इंसान
एक है और हमारी रूहानी तौर पर, इखलाकी तौर पर हम भेड़ों की मानिंदा। अब हम देखते हैं, मेरे साथ नया अहदनामा खोलिए कि चरवाहा क्या कहता है। ये तो हमने सीख लिया भेड़ों के मुतल्लक कि भेड़ें क्या कहती हैं। यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब निकालिए मेरे साथ। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, अब हम वो देखते हैं चरवाहा क्या करता है। जब हम उसको अपना चौपान, अपना चरवाहा मान लेते हैं तो हमें किसी किस्म की कमी नहीं आती। जब हम इस बात का इकरार कर लेते हैं, 23 ज़बूर में हम सीखा हमने कि वो हर तरह से हमारी हिफाजत करता है, चाहे हम मुश्किलात में हो, वो मौत की वादी में से हमारा गुजर हो, दुश्मन के आगे हमारा दस्तरखान हो, मुश्किलात में हो, हर तरह से वो हमारी हिफाजत करता है, हर तरह से हमारी निगहबानी करता है। ये हमने सीख लिया। और जब हम उसको अपना चरवाहा मान लेते हैं शख्सी तौर पर, तो हमारी हिफाजत करता है और हमारी निगहबानी करता है, हमें हर तरह की जरूरत से नवाजता है, हमारी जरूरत को पूरी करता है। फिर यूहन्ना 10वें बाब में चरवाहा क्या कहता है, लिखा है 11वीं आयत में, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। ये है हमारा अजीजो अच्छा चरवाहा। जब हम अच्छा अपने यीशु मसीह को अपना चरवाहा मान लेते हैं तो वो हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान की हमारे लिए कुर्बानी दे दी। कि जो अच्छा चरवाहा इस दुनिया में एक ही है, वो यीशु मसीह है। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और वो आज भी अपनी भेड़ों को ढूंढता है। वो आज भी कहता है कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। वो आज भी कहता है, आओ, मेरे दिल का दरवाजा आपके लिए खुला है, आओ। आज भी अगर आपके दिलों में मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, आए। अगर आज भी कोई भेड़ भटक चुकी है, अगर आज भी कोई भेड़ अपना रास्ता भूल चुकी है, तो यीशु मसीह कहता है कि आओ, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, मेरा दिल का दरवाजा आपके लिए खुला है। वो हमेशा हमें खुशामदीद कहता है, वो हमेशा हमारी मदद करता है, वो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। और इसी तरह आगे लिखा है 15वीं आयत में इसी बात की, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि खुदावंद यीशु मसीह हमें जानता है, वो हमारी तमाम मुश्किलात से वाकिफ है। जिस तरह चरवाहा अपनी भेड़ों से, वो अपनी एक एक भेड़ से वाकिफ होता है। चरवाहा, उसे पता होता है कि मेरी ये जो भेड़ है ये किस तरह की भेड़ है। उसे पता होता है ये मेरी भेड़ शरारती है, उसे पता होता है ये मेरी भेड़ जरा सोबर है, उसे पता होता है ये मेरी भेड़ जरा शरीफ है, ये मेरी भेड़ मुश्किलात में नहीं जाती, उसे पता होता है ये मेरी भेड़ जरा मुश्किलात में दो चार रहती है। इसी तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें जानता है, वो हमारी तमाम मुश्किलात से वाकिफ है, वो हमारी तमाम नाकामियों से वाकिफ है, वो हमारे तमाम मसाइल से वाकिफ है, वो हमारे तमाम प्रॉब्लम से वाकिफ है। सिर्फ और सिर्फ हमें इकरार करने की जरूरत है कि खुदावंद मेरा चौपान है। जब हम उसे अपना चरवाहा मान लेंगे तो फिर हमें कमी ना होगी। अजीजों, इसलिए जरूरी है कि हम उसको अपना शख्सी तौर पर निजात दहिंदा माने और उसको अपना चरवाहा माने। और भेड़ें जो फिर खुदा के कलाम पर यकीन रखती हैं, जो अपने दिए हुए जो खुदा के पाक कलाम की बातें हैं उस पर यकीन रखती हैं, फिर यीशु मसीह उनको बरकत से भी नवाजता है। फिर लिखा है कि जब भेड़ें जिस तरह मुझे जानती हैं, जिस तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं। जब हम उसको अपना चरवाहा मान लेते हैं, जब हम उसको अपना निजात दहिंदा शख्सी तौर पर कबूल करते हैं, फिर हम भी अपने चरवाहे को जानते हैं। हम भी जानते हैं कि मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। और ये तभी है जब हम उसके पाक कलाम पर यकीन रखते हैं। फिर ये रिलेशन है चरवाहे का और भेड़ों का, ये एक रिलेशन है जो दाऊद नबी ने बयान किया है कि कैसे चरवाहा और जो भेड़ें हैं आपस में एक दूसरे को जानती हैं और एक दूसरे का रिलेशन, जिस तरह
चरवाहा जो है वो भेड़ों को जानता है। फिर जब भेड़े चरवाहे को मानती हैं, उसकी रहनुमाई में चलती हैं, फिर भेड़े भी आजादी से चलती हैं। भेड़ों को भी फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मेरा चरवाहा मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हालेलुया। और फिर आगे 27वीं आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और फिर हम उसके जब पीछे पीछे चलते हैं, उसकी रहनुमाई, उसकी बातों में उसकी पीछे पैरवी करते हैं और उन्हें हमेशा की फिर मैं जिंदगी बख्शता हूं। उसका अजर ये है, वो हमें फिर हमेशा की जिंदगी बख्शता है। और फिर आगे लिखा है, वो अब तक हलाक ना होंगी, क्योंकि फिर हम हमेशा हमेशा की जिंदगी में अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ दाखिल हो जाते हैं। फिर हम हमेशा हमेशा अब्दियत में उसके साथ दाखिल हो जाते हैं और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जब हम अपने आप को उसके हवाला कर देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के सुपुर्द कर देते हैं, इस बात का इकरार करते हुए कि वो मेरा चरवाहा है, तो फिर कोई भी हमें उससे छीन नहीं सकता। शैतान चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन हमारा यीशु मसीह कादरे मुतलक जोरावर लश्करों का खुदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो कादरे मुतलक है, जो जोरावर है, कोई भी हमें उससे छीन नहीं सकता। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है, खुदा की बात कर रहा है, खुदा के वसीला से यीशु मसीह यहां पर बात कर रहा है, सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। और फिर आगे लिखा है, इसी लिखा हुआ, मैं और बाप एक हैं। भेड़ों के मामले में मैं और बाप, हम यहाँ पर एक हैं। हम भेड़ों को अपनी हिफाजत से जाने नहीं देंगे। कोई भी भेड़ों को हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, मैं और बाप एक हैं। और ये प्रोटेक्शन है, ये गारंटी है, ये एक जमानत यीशु मसीह दे रहा है ईमानदारों को। ईमानदारों को एक गारंटी मिल रही है कि जब आप मुझे अपना चरवाहा कबूल करते हैं, जब आप मुझे शख्सी तौर पर अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन है। मैं और बाप एक हैं आप सबके लिए। इसलिए आइए अजीजों, जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। और अगर बरगश्ता हो चुके हैं, अगर हम मोहब्बत हमारे दिलों में खुदावंद के लिए ठंडी पड़ चुकी है, इस दुनिया में रहते हुए आजमाइश में है, आजमाइश के जरिए से भटक चुके हैं, अपनी राह से फिर चुके हैं, आइए आज मौका है कि हम फिर अपने आप को रिफ्रेश करें, ताजा करें कि खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हर तरह की जरूरत से मुहैया करेगा, वो मुझे हर तरह की बरकत से मुहैया करेगा, वो मुझे दुनियावी बरकतों से मुहैया करेगा, वो मुझे जिस्मानी बरकत से मुहैया करेगा, मुझे रूहानी बरकत अता करेगा, वो मुझे हर दो तरह की बरकत से मुहैया करेगा, क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के पाक कलाम के लिए, क्योंकि वो ही हमें कुव्वत, ताकत और तकवीयत अता करता है। और पाक कलाम के वसीला से ही हम कुव्वत, तकवीयत पाते हैं इस दुनिया में रहते हुए, और इस दुनिया में जब तक है जिंदगी गुजारने के लिए हमें इसकी कुव्वत और ताकत चाहिए, और वो हमें पाक कलाम के वसीला से ही मिलती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत देंगे।